Hello everyone, I am Nitin Sharma and today is our day 2. And in that day 2, I will discuss about consistency in any field. Like if you want to become a good footballer, if you want to become a good, uh, if you want to do anything in your life, suppose that if you want to clear any government exam, okay, then you will have to become consistency and how you can be consistent. Today we will discuss about in this video. So you know that consistency is the most important and fundamental for your goal, for your success. So in the video in the video I will discuss about consistency. So you know that in the modern world 2025, attention is the most expensive weapon. Okay, you know that if you have attention, I know that every human being has an attention, every animal being has an attention. But you know that where we should invest this attention, because attention is like money. If we give our attention, then it will compound day by day, day by day. And so in the video I will talk about that. Give your attention in the right thing, and in the right thing, and give the attention consistently. Because of, if you are deliberately, मतलब सपोज दैट अगर आप उसको कंसिस्टेंसी अपने अटेंशन को एक जगह पर नहीं दे रहे हो तो वो कंपाउंड नहीं होगा, सब समझ रहे हो ना आप. देन इन्वेस्ट योर अटेंशन इन वन प्लेस एंड कंसिस्टेंटली. So in the video I will discuss about, suppose that if you are preparing for clear any government exam, like you want to clear SSC CGL exam, then you know that there is four subject, and you will have to become consistent, and you will have to consistent revision, consistent practice, consistent mock test. आपके पास अगर एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और एक बहुत ही एवरेज बच्चा है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा ईगो है, उसके पास बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है कि मैं कर लूँगा. बट एक बच्चा है जो कि एवरेज है और वो कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, और वह लगातार चलते आ रहा है. लेकिन ये जो बच्चा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पढ़ने में, बट वो मेहनत नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. और अगर हम एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम, एट द रिजल्ट देखेंगे, तो एवरेज बच्चा ही विन करने वाला है, और जो टैलेंट पर था वो टैलेंट बिखर जाने वाला है. बिकॉज ऑफ दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. सो इन योर लाइफ, हम लोग ह्यूमन बींग हैं ना भाई साहब, हम लोग अपने हिस्ट्री में देखेंगे तो क्या नहीं कर सकता है ह्यूमन बींग. आज के भी डेट में तुम देखो क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग यहाँ अगर हैं तो अंटार्कटिका कॉल लगा सकते हैं. सब समझ रहे हो ना कि कितना फास्ट है हम लोग. सो आई एम थिंकिंग दैट in the fast in the fast paced world, if our mind works very slow, then we are not suit in the society, not suit in the world. You know that also India and Jharkhand, I live in Jharkhand, and Jharkhand is deprived from technology a lot of. You know that Karnataka, Bangalore called the Silicon Valley of India, and the real Silicon Valley is America. Why? Because our mindset is very very deprived, because we fear, we have social anxiety. And from किस टाइप के पर्सन से हम लोगों को सोशल एंजाइटी है, जिसको जीरो भी कुछ नहीं आता, उससे हम लोगों को सोशल एंजाइटी करना है. तो सोशल एंजाइटी ही आप लोगों को कभी कभी आप लोगों का जो क्या कहते हैं, कभी कभी आप, जैसे कि आपको वर्कआउट करना है, आप घर में वो तो वर्कआउट कर रहे थे, आप कहीं फंक्शन में गए, वहाँ पर आपको सोशल एंजाइटी हो गया कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, लोग क्या बोलेंगे. तो क्या हुआ कि वहाँ पर कंसिस्टेंसी एंड हो गया. ये तो होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वी हैव सोशल एंजाइटी. लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस पर्सन से सोशल एंजाइटी हो रहा है, या जिसके पास एक डिफरेंट माइंडसेट नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे हम लोग डर रहे हैं. दिस इज़ नॉट correct way of thinking. Okay, the correct way of thinking that this is good, then this is good, and I am doing that, I am doing it, then it will give me result. Okay, जैसे कि आई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ,
I am making video from 6 months and I will not get result. There is no any problem that I am not getting result, but I am working hard. I am working hard towards creating video. I know that one day I will get result because all the things which I am doing, all the thing is collected in one thing, and this will give result in one time. I know that. I know it. I know that it perfectly. Then all the thing will be pay off. And also I am consistent. And if you want to become consistent, then also your sleep quality, your routine should be good, because of if your sleep quality is not good, then आप कितना भी मोटिवेशन अपने अंदर ले आओ कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को एक 8 घंटा का प्रॉपर स्लीप तो लेना ही है, बिकॉज वही जो स्लीप पावर है, अगर आपका बॉडी में 100% या अप 80% चार्ज है, तभी आप दिन में अपने एक्टिविटी को कर सकते हो, नाइदर यू कैन नॉट डू योर एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज योरसेल्फ, दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग, ओके। उसके बाद आप लोगों का कंसिस्टेंसी का जो फीलर है वो स्टार्ट होगा, और आप लोग जिस चीज़ में इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ में कंसिस्टेंसी आप लोगों को लाना है। क्या होता है ना कि हमारा माइंड में ना चार मतलब ऐसा पिलर होता है, जैसे कि हैबिट फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमको करना है, कोई भी चीज़ हम हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमको एक वीडियो बनाना है, ठीक है ना, ये एक हैबिट है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको ईजी बनाएंगे। ईजी बनाने के लिए एक अच्छा जगह खोजना है जहाँ पर हम वीडियो शूट कर सकें। मेक इट ईजी नहीं, पहले मेक इट ऑब्वियस। आई एम सो सॉरी। सबसे पहले इसको ऑब्वियस बनाना है। ऑब्वियस क्या हो सकता है? ऑब्वियस ये हो सकता है कि वीडियो बनाने से मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरा जो सोशल स्किल्स है, मेरा जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, मेरा यूट्यूब में जो व्यूज़ है, मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो इंक्रीज होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? दूसरा माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, अच्छा ये था पहला। दूसरा ये होगा मेक इट ईजी, कि आप अपने वीडियो जब बनाएंगे वो आप कहाँ बनाएंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छा वीडियो है, क्वालिटी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो आपका होने वाला है, वो जो तीसरा आपका जो होने वाला है वो है मेक इट अट्रैक्टिव, कि आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अच्छा शर्ट पहनना है, अच्छा जीन्स पहनना है, आप लोगों को स्माइल करना है, हैंड मूव करना है, बॉडी लैंग्वेज सही करना है, बोलने का तरीका, पेस क्या क्या रहता है उस सबको ध्यान रखना है। और चौथा मेक इट सेटिस्फाइंग, कि आप वीडियो बना लो तो खुद से एक रिवॉर्ड आना चाहिए, कि डोपामिन हिट होना चाहिए कि यस आपने सही किया। तो ये टोटल लूप होता है, ये टोटल लूप होता है। इस लूप को अगर आप समझ गए, देन यू कैन परफॉर्म एनी गुड हैबिट, एंड दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। अगर ये गुड हैबिट के लिए लागू हो रहा है तो ऑफकोर्स बैड हैबिट के लिए भी लागू हो रहा है। जैसे कि लोग पोर्न में एडिक्ट हो जाते हैं, फैब में एडिक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया में एडिक्ट हो जाते हैं, स्मोकिंग में एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग में एडिक्ट हो जाते हैं, लड़कियों के पीछे एडिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज हैबिट। दिस इज मेक इट ऑब्वियस, मेक इट ईजी, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। दिस इज द टोटल गेम ऑफ हैबिट। एंड जैसे कि मैं इसको समझ चुका हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मतलब समझना चाहते हैं तो इसको आप, एक एटॉमिक हैबिट बुक है जो जेम्स क्लियर द्वारा रिटन है, यू कैन बाय दिस बुक, एंड दिस इज़ द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल बुक आई एम मतलब मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक 10 से 15 नहीं 5 से 7 बुक पढ़ चुका हूँ। जैसे कि एटॉमिक हैबिट मोस्ट फेवरेट बुक है। दूसरा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड कैसे काम करता है बता देगा आपका। तीसरा डीप वर्क जो था हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पांचवा द साइकोलॉजी ऑफ मनी। छठा थिंक एंड ग्रो रिच। एंड सातवां माइंड सेट। और अभी 8 9 10 और बुक मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, एंड ऑल्सो आई एम अलाउइंग इट फ्रॉम माई लाइफ, फ्रॉम इट माई कम्युनिकेशन स्किल्स, माई स्पोकन इंग्लिश का लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है टू सम एक्सटेंड। एंड if I know that I will be consistent, because I love this journey. I love I love speaking English. English is my love. And in any circumstances, like when my mood is off, then I used to speak English. That time my mood will become improve, and I will be happy. So this is totally game. I know that I distracted from my main topic. My main topic was कंसिस्टेंसी, बट आई एम मतलब मैं जो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उसके पीछे रीजन है कि दिस इज़ नॉट माई बिगनर फेज, आई नो दैट। बट
मैं आप लोगों को स्टोरी बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू स्टोरी बिकॉज यू नो दैट स्टोरी फॉर्मेशन इज द बेस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग फॉर यू फॉर कंटेंट क्रिएटर and for creating content. So so in your life, in your life, what is the total? If I will tell you that, tell me the real meaning of life, then this will be three. First, rich. Second, healthy life, wealthy life, and happiness life. And I will describe all the things in this video. First of all, healthy life. What would be healthy life? What would be healthy life? The meaning of healthy life is your body is healthy, your mind is healthy, each and every organ of your body is healthy, your communication skills is healthy, everything which you have, you are healthy totally. Second thing is wealthy. Wealthy meaning not you are you have a lot of meaning. Wealthy means you have a lot of, मतलब आपके पास फूड, क्लोथ्स और शेल्टर, ये तीनों के लिए सफिशियंट मनी है. और थर्ड, आप लोगों के हैप्पीनेस. और जो हैप्पीनेस है उसको हम मेंटल वेलबींग भी कह सकते हैं. बिकॉज ऑफ आप लोग, इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी, देन व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैज इन योर इंटरनल हार्ट और इन योर इंटरनल माइंड. मतलब आप कैसा परसेप्शन बनाते हो. जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हो, तो जो हैप्पीनेस आदमी है उसमें से वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी होता है कि वो अगर किसी चीज़ को देखता है तो वहाँ से वो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, उसका पॉजिटिव एनर्जी होता है, इसलिए वो हैप्पी रहता है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें से दो साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से दो पॉपुलर इंसान को लिया गया. ठीक है ना. एक पॉपुलर इंसान जो था बहुत ही खुश रहता था अपने लाइफ में, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था. और दूसरा था कि वो हमेशा रिमोर्स से, रिग्रेट, एंगर में रहा करता था. तो अगर हम फिर वो दोनों का जो लाइफ पे स्टडी किया गया तो पता चला कि जो हमेशा हंसता खेलता रहता था वो लॉन्ग टर्म के लिए जीता है, और जो हमेशा रिमोर्स में, एंगर में रहा करता था वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में डेड हो जाता है. और ये सब रियलिटी है, ये सब तो स्टडी किया गया है. तो और आई एम थिंकिंग दैट दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. ओके, बी पीसफुल, बी हैप्पी एंड बी जॉयस. डोंट मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग. मतलब बोला जाता ना कि if you are peace, then you can convert the peace into happiness. Then peace is everything. But what you should do for getting, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मेरे पास अभी जितना भी नॉलेज है, जितना ज़्यादा भी नॉलेज है, मैं सब इस वीडियो में देना चाहता हूँ. जैसे कि इफ़ यू वांट टू गैदर पीस, देन हाउ यू कैन गैदर पीस, हाउ कैन यू एक्यूमुलेट पीस, हाउ कैन यू कलेक्टेड पीस. Then first of all, if you want to peace, then do meditation. Meditation is everything. Okay, because in the time of meditation your body disconnect, no, your mind disconnect from your body. And when your mind disconnect, then the real, उस समय आपका रियल मैजिक होता है. सो ये आपको हैबिट बनाना चाहिए. आप लोगों को मैं हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था, तो आपको एक मेडिटेशन को हैबिट बनाना है. जब तक आप मेडिटेशन को हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक तो आपका अपने रियल पर्पज़ को नहीं खोज पाएंगे. और आप लोग, अगर हम लोगों के हिंदुज़म में देखोगे तो जैनिज़्म में पढ़ोगे महावीर स्वामी जहाँ पर वो मेडिटेशन किया करता था. आप बुद्धिज़्म में पढ़ोगे गौतम बुद्धा जो कोई मेडिटेशन किया करता था. आप लोग इस्लाम में पढ़ोगे, क्या नाम है उसका, इस्लाम का नाम आई एम थोड़ा भूल रहा हूँ, बट 600 हज़रत मोहम्मद साहब, यस, हज़रत मोहम्मद साहब, वो भी मेडिटेशन किया करता था. तो आप लोग देख रहे हो ना, हिंदुज़म, आप लोग हिंदुज़म में भी मेडिटेशन किया जाता है. आप हिंदुज़म में रिलेट कर लो, जैनिज़म में रिलेट कर लो, बुद्धिज़्म में रिलेट कर लो, इस्लाम में रिलेट कर लो, या आप लोग ग्रीक कल्चर देख लो. हर जगह मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल फॉर ग्रोइंग योर माइंड. And this is the real power. Okay, and this is my habit. I am doing it from
60 days, and I am thinking that I get a lot of benefit from meditation. And you suppose that you get a good mind, but with a good mind also required a good structured good fitness. But what you should do for a good fitness? Then only three things. First of all, your diet. Your breakfast should be mood boosting, your lunch will be healthy, your dinner will be light. And second thing is your hydration is the most important thing for your muscle relaxation, for your muscle building, and for your mindset building. Okay, and third and most important is workout. Okay, बट मेन बात क्या होता है कि हम लोग वर्कआउट करते हैं, सिर्फ एक प्रकार का वर्कआउट करते हैं। कोई सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट करता है, तो कोई सिर्फ एब्स का वर्कआउट करता है, तो कोई लेग्स का वर्कआउट करता है, सिर्फ कोई इस शोल्डर का वर्कआउट करता है। तो आप लोगों को ये नहीं करना, आप लोगों को स्पेसिफिक डे पर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है, तब ना इससे आप टोटली ट्रेन हो पाओगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप लोगों को पूरा मैंने फिटनेस के बारे में बता दिया, आप लोगों को मैंने पूरा एक हेल्दी माइंड के बारे में बताया, एक हेल्दी बॉडी के बारे में बताया, लेकिन एक हेल्दी हैप्पीनेस लाइफ के बारे में बताएंगे, एक हेल्दी माइंडसेट कैसा होता है। सो इफ़ यू वांट टू अचीव ए हेल्दी माइंडसेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें से आप खुद को बहुत ही साफ तरीके से बोलते हो जो आप पाना चाहते हो। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो तुम बहुत ही साफ तरीके से कहते हो कि मेरे को एसएससी सीजीएल करना है, बहुत ही साफ तरीके से जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है साफ तरीके से बोलना। ठीक है, तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। एंड दूसरा होता है विजुअलाइजेशन, कि आप विजुअलाइज करो। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू क्लियर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, then visualize it for 5 minutes. Then I am in the exam hall, I am solving the math question, I am solving the English question, I am solving the reasoning question, I am solving the GK and GS question. I love solving the question. This is the most happy moment. I am thinking that I am scoring 180 plus in the SSC CGL exam. My mindset is totally clear in the exam. I am feeling very happy because of हम लोग एक होता है ना कि पृष्ठभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, या एक हिंदुज़म का बहुत ही खूबसूरत कोट है जो मेरे को बहुत ही मज़ा आता है ये वाला मतलब सुनकर। तो यही होता है कि इफ़ यू वांट टू प्ले एनीथिंग इन फिजिकली, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले इट मेंटली। ओके, उसके बाद थर्ड आता है पॉजिटिव एफर्मेशन, कि खुद से पॉजिटिव टॉक करना है। क्यों जानते हो, हम लोग जो बोलते हैं एक लूप की तरह बनता है। जैसे कि खुद से अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक मैन हो, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट होता है एक नेगेटिव पर्सन से एक पॉजिटिव की ओर। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू score good in the maths, then tell that you are math expert, tell that you are the magician of math, tell that you are everything math, you love math। मैं जानता हूँ कि इसका मतलब कि आप बोलोगे आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप नहीं ना हो जाओगे। लेकिन इससे क्या होता है, एक फेक परसेप्शन बनता है। लेकिन फेक परसेप्शन से अगर हैप्पीनेस मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, हैप्पीनेस तो मिल रहा है ना। सो इफ मतलब if you gather happiness from fake perception, then fake perception is not fake, this is real। Okay, and fourth will be journaling। journaling I know that journaling is the best habit। अपने मन को खाली करना, अपने मन के फीलिंग्स, अपने मन के एक्सपीरियंस, आपने दिन भर में क्या किया उसको एक कॉपी में लिखना। बट मेन बात है इसको मैं एक हैबिट बना ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने मेडिटेशन को, जैसे कि क्या हो गया, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इस सब को, पोएट्री अफर्मेशन को मैंने बना लिया। बट जर्नलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई विल टेल दैट मेक इट हैबिट। ओके, यू कैन डू। आई आई मतलब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग हार्ड टू डू इट। वन डे आई विल डू दिस। ओके, दैट टाइम आई विल मेक वीडियो दैट oh the power of journaling, the power of journaling। I will make video one time
and okay, I will take. So I will tell about a good mind, I will tell about good body, I will tell about happiness, and also I want to tell about future, your career, your upcoming era. What do you want to do in next? Oh, how will be your upcoming time? How you want to see in next? So this is the most important thing in the cosmos. Suppose that अभी तो सनसेट हो रहा है, तो हर दिन सनराइज होगा, हर दिन सनसेट होगा, हर दिन बदलेगा, हर दिन बदलेगा। आपके पास स्पेसिफिक टाइम होगा, आपके पास स्पेसिफिक डेडलाइन होगा, आपके पास एक हेल्दी बॉडी होगा। आप अपने बॉडी को, आप लोगों के पास 24 आवर्स रहेगा। उस 24 आवर्स को आप मैनेज करके एक पर्पस ढूंढेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। आप जब किसी से कोई स्टक कर लेते हो कि